हम्म, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा सर। दिख रहा है। एक मिनट, जस्ट मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस हाँ, एक मिनट, कुछ तो कंप्यूटर के अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज गोइंग टू बी सेव जस्ट नाउ। सो आई थिंक लेट अस वी शुड स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अभी आपको टॉपिक दिख रहा है? पीपीटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन बाकी तो दिख रहा है। हेलो, सर। वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है सभी को? ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ, and as soon as our PPT becomes ready, we can have a look to our PPT also. So our today's topic, which is related to endemism. Now this term endemism is very important because it is related to distribution of individual related to any particular restricted geographical area, and it is known as an endemism. So endemism is ecological state of species being unique to defined geographical area. मैं इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। There are different types of mango species available. Specifically, even in Alfonso mango, you say that Alfonso mango variety Devgarh, Alfonso mango variety Ratnagiri, Alfonso variety Andhra Pradesh, Alfonso variety from Karnataka, etc. But you are better known, Alfonso variety of Devgarh has a specific characteristic feature that is only available in that particular area. So whatever plant species where such a type of restriction is in only restricted geographical area, then it is supposed to be such a type of endemic species. Now, I have already told you that endemism is the ecological state of species being unique to defined geographical locations such as island, nation, country, or other defined zones or habitat type. Organisms that are indigenous to a place are not endemic to if it are found elsewhere. अगर दूसरी किसी जगह फाउंड होते हैं तो it is not endemic. एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म इज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी तक जितने भी फैमिलीज पढ़े थे उसमें हम बोलते थे कि XYZ फैमिली हैज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका कोई ये नहीं है, यानी उसका अपोजिट है एंडेमिज्म। कॉस्मोपॉलिटन मींस एवरीवेयर, एंडेमिज्म मींस रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। An alternative term for species endemism is presensitive, presensitive, which applies to species and subspecies categories that are restricted to a defined geographical area. So in this topic, we are going to study different aspects of endemism. That is, what is the exactly meaning of endemism? What are the different types of endemism? What are the characteristic features of endemism? Theories behind the endemism,
factors of endemism and endemic species in India. Now remember well, as far as our unit number 3 considered, our unit number 3, we have studied in the earlier part topics related to biological diversity. And now the remaining topics are like endemism, hotspot, hottest hotspot, and invasion and introduction to local plant diversity and its socio-economic importance. So from this topic, we are going to study the endemism. Now, as far as endemism considered, the first part, that is meaning of endemism. किसी चीज का हमें जब तक मीनिंग मालूम नहीं है तब तक हम उसके सामने नहीं जा सकते. क्या आप लोग सुन रहे हैं? हेलो? Yes, sir. ओके. I think what happens I don't know, लेकिन whatever जो भी पीपीटी मैंने बनाई थी वो पीपीटी चल नहीं रही है. That's why मुझे यानी वर्ड डॉक्यूमेंट लेना पड़ रहा है. लेकिन I think it is visible to all of you. हेलो? Yes, sir. डॉक्यूमेंट तो विजिबल है ना? Yes, Okay. sir. So the first part, that is meaning of endemism. Endemism means confinement of particular species, genus or group of plant and animals to particular area. मैं एक और सिंपल आसान सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको मालूम होगा. आप किसी चीज के बारे में किसी एक जगह से जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको बताया था बैंगन या ब्रिंजल फ्रॉम कुरुंदवाड़ या बैंगन या ब्रिंजल फ्रॉम गोटे विलेज ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट, और सपोज टू बी आप बोलते हैं वायगांव हल्दी, because normally that characteristic features are not observed in rest of area. लेकिन regarding the endemism, if whatever particular plant available in a particular geographical area and only in that limited geographical area that individual is observed which having specific characters, then it is supposed to be endemic. Taxa occurring only a single restricted geographical area is known as endemics. Endemism normally applied only where there is a considerable restriction in the area of distribution. शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने नवेगांव बांध देखा है? हेलो? देखा है सर. सभी लोगों ने देखा है, नहीं तो कुछ लोगों ने देखा है. और उसके बाजू में ही एक दूसरा ये है एरिया, कौन सा गाँव है ना सर? वो नवेगांव बांध के बाजू में एक फिशरी है और वहाँ एक धरण है. कुछ आइडिया है आपको? गोठनगांव. यस, गोठनगांव के नजदीक वहाँ एक डैम है. वहां भी आपने देखा होगा चारों जगह से पानी और बीच में सिर्फ हिली पोर्शन दिखता है. वैसे ही कई जगह पे अपने नवेगांव बांध में भी है. If you look to such isolated patches, flora as well as fauna in these isolated patches are different. So endemism normally applied only where there is a considerable restriction in the area of distribution. Types of endemism, अब अलग अलग टाइप ऑफ एंडेमिज्म है. उसमें से 3 टाइप ज्यादा जरूरी है, दैट इज नियो एंडेमिज्म, पैलियो एंडेमिज्म एंड इपीबायोटिक और रिलिक एंडेमिज्म. अब इसके डिटेल्स में अभी इस स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक एक लाइन है, हम देख लेते. नियो, किसी चीज को हम नियो बोलते हैं कि जो सबसे पहले है, दैट इज अ नियो. टैक्सॉन इज इवोल्यूशनरीली यंग एंड नॉट येट स्प्रेड ओवर द न्यू एरिया, and such a type of taxon is known as neo-endemic individual. It is not spread to different new area. So here neo term is related to new. Then paleo-endemism, हम हमेशा paleo यानी back previous period को use करते term. So paleo-endemism, taxon is restricted now, but once it was widely distributed. जैसे हम साइकस के बारे में बोलते हैं कि साइकस इज एक्सटिंक्ट because it is available in fossilized condition as well as now also it is living, so it is living fossil.
taxon is restricted now, but once it was widely distributed. A restriction of species in a pocket is due to physical barrier like desert, mountain, sea, etc. or change in climate or soil type, etc. ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इपीबायोटिक और रिलिक एंडेमिक्स. तीसरा टाइप, the plant belongs to fossil group and restricted to few pockets due to favorable climate. Lack of competition, that is ginkgo biloba, which is restricted to China but widely spread in north temperate zone as a fossil. ginkgo biloba के प्लांट्स मैंने शायद शेयर किए थे लास्ट ईयर, तो इट इज लिविंग फॉसिल. Sequoia dendrogigantiatum is now restricted to Californian Sierra Nevada. So these are some of the plants which are epibiotic or showing relic endemism. According to Richardson, endemics is intermediate between two extremes. That is, plants which are not of recent origin but have retained a narrow distribution, and he called them holioendemism. अब अलग अलग सब टाइप्स है, हम इन सब टाइप्स की तरफ नहीं जाते, जैसे कि सीजो एंडेमिक्स, पेट्रो एंडेमिक्स, एपो एंडेमिक्स, इन टाइप्स के तरफ ना जाते हुए हम व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंडेमिज्म उसके बारे में देखते. नाउ ऑल ऑफ यू आर वेल नोन, every living organism has its own characteristic feature, and whosoever endemic species are available, they are restricted to only particular geographical area. So they have some of the typical characteristic feature. For example, these are like, they are localized in distribution of their narrow ecological amplitude and are unable to invade in fresh areas. मतलब उनका पॉपुलेशन एक लिमिटेड एरिया में ही है और वो दूसरा कोई एरिया कॉन्क्वायर नहीं कर रहे, नहीं तो इन्वेड नहीं कर रहे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक. सो आई अगेन रिपीट, दे आर लोकलाइज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन because of their narrow ecological amplitude and unable to invade in a fresh area. So this is interesting characteristic feature of endemism or endemic plants. They lack potential to migrate because of saturate genomics. Genome saturate हो रहा है, genomic saturation है, and that's why they lack potential to migrate. एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट होना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा, हम हमेशा टर्म यूज करते हैं एबॉर्जिन. एबॉर्जिन का मतलब है लोकल रेसिडेंट या एक ही जगह पे रहने वाले. शायद आपको अभी पता होगा, मराठी में हम टर्म यूज करते हैं भूमिपुत्र, म्हणजे ज्या जागेचा माणूस आहे किंवा ज्या एरियामध्ये जन्म झाला त्या जागेचा तो भूमिपुत्र समजला जातो. So just like that, endemic plants are supposed to be restricted to that particular area, or they are supposed to be a bhumiputra of that area. Dispersal propagules are not able to sustain during migration to other area. It may be due to physical barrier. That means there may be any type of barrier. These plants cannot migrate or cannot grow or cannot propagate due to any of the way. Then what are the different theories behind endemism? Now, as far as endemism considered, there are two main theories behind the endemism. First theory believes that last survivor of once flourishing flora, which is now declining, are the relics or epibiotics, which are endemics. However, second theory believes that these are recent and youthful forms in course of gradual extinction. The theory is also known as age and area hypothesis. So अलग अलग theories है. First theory is supported by geographers. अलग अलग geographers ने first theory suppose की. Sequoia semi permeans of Central Valley of California. Remember, Sequoia is a gymnosperm, and Oregon, and Sequoia gigantea of Sierra Nevada, which are endemic to their respective native homes. And they were extensively distributed in Cretaceous and Tertiary period. Cretaceous और Tertiary period में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ओरेगन और कैलिफोर्निया, ये जो स्टेट है, वहाँ उसके
एंसिस्टर्स अवेलेबल थे। सपोर्टर्स ऑफ सेकंड थ्योरी हैज द एग्जांपल ऑफ प्रिम्यूला। प्रिम्यूला शायद आपको पता होगा, हम उसको इवनिंग रोज बोलते, सो इट इज प्रिम्यूला, इट शुड बी अंडरलाइन, प्रिम्यूला अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन नहीं तो इटैलिक्स। उसके बाद में इम्पैशंस, आई थिंक आप सभी को इम्पैशंस मालूम है, आप लोग उसको बोलते चिवड़ी। रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन मीन्स कार्वी। So as far as these plants considered is primula, impatiens, rhododendron, according to second theory, area is directly proportional to its age in scale of evolution. Area directly proportional है बोल रहे। अब हम ये भी फैक्टर थोड़ा सा छोड़ देते, लेकिन जस्ट नेक्स्ट पार्ट देखते, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेमिज्म। कौन से ऐसे फैक्टर है कि जिसकी वजह से एंडेमिज्म होता है या रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंडेमिज्म आर नेचुरल क्रॉसिंग अमंग द क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। क्लोजली रिलेटेड प्लांट जो है उनमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है अंडर फेवरेबल कंडीशन, एंड म्यूटेशन, आल्सो म्यूटेशन इज important. If condition of isolation is developed and effect become more pronounced. मैं और एक एग्जांपल आप सभी को देता हूं। फॉर एग्जांपल, वी ऑलवेज से दैट द पॉपुलेशन ऑफ kangaroo इज मेनी मोर टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया कंट्री देखे तो बहुत सारे ग्रासलैंड है, एंड दैट्स व्हाई लार्ज नंबर ऑफ हर्बिवोरस पॉपुलेशन ऑब्जर्व्ड इन ऑस्ट्रेलिया, because it is island. So normally island has a specific type of population because it is not well connected to the rest of ecological habitats which are available in the surrounding. अब next देखते, 70 according to Wolf, 85% of flora of Saint Hawaii, 80% of Hawaii Island, 72% of New Zealand is endemic. मतलब आप मैक्सिमम एंडेमिज्म कितना देख रहे हैं? 85%, 82%, 80%, 72%. So there are few of the patches which shows such a type of heavy endemism. फिर से मैं नाम बताता हूँ। वुल्फ ने क्या बताया? 85% सेंट हेविया। अब सेंट हेविया अगेन आइलैंड, हवाई अगेन आइलैंड, न्यूजीलैंड अगेन इट इज आइलैंड, because it is well connected, it is not connected by rest of ecological habits. शायद आपको पता होगा, हमारे कंट्री को भी बोलते हैं कि it is archipelago. हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, इंडिया के बारे में भी आपको पता होगा, बोलते हैं कि आर्किपिलागो। आर्किपिलागो मीन्स किंवा भारतीय जमीन किंवा भूभाग जो है, it is surrounded by all the three sides by sea, and on the northern side there is a great range of Himalaya, and that's why this our country is supposed to be best protected by different ecological zones. I think all of you are well known, we have greater diversity of all climatic zones also. Even differences observed at any of the district or tehsil level also. Northern portion has a different vegetation, southern part has a different vegetation. So endemism in observed, we have taken here example, for example, New Zealand, Hawaii and Saint Hawaii. Mountain also have more endemic species and they are isolated. Mountain में भी isolated vegetation है. 70% of the species of Himalaya is endemic. Climate is also one of the important factors. North Himalaya is a dry plateau of Tibet and South Himalaya range the alluvial fertile soil. आप देखो, हिमालय का geography is different, हिमालय का climatic conditions are different, और यहाँ हमने देखा कि North Himalaya which shows dry plateau, while Tibet and South Himalayan ranges they show alluvial or fertile soil. According to Chatterjee, the percentage of endemic species of dicot plant in India is more than 50. Maximum endemic plants are found in Himalaya and South India. Indo-Gangetic plain has very small number of endemic species.
आप अभी थोड़ा सा ध्यान में रखो, why Indo-Gangetic Plain has less endemism, because erosion is going on in this area. This area shows good quantity of variations and hence less endemism observed in Indo-Gangetic Plain. अभी हम जा रहे हैं एंडेमिक स्पेसीज ऑफ महाराष्ट्र की तरफ, सॉरी इंडिया की तरफ. At least we should be known which species are endemic to महाराष्ट्र. महाराष्ट्र को कौन से स्पेसीज एंडेमिक है. अगर एंडेमिक स्पेसीज की तरफ हम जाते हैं तो पहली देखो इरियोडेंड्रॉन, सॉरी रोडोडेंड्रॉन. रोडो का मतलब आप जानते हैं, रोडो मीन्स रिलेटेड टू रेड एंड डेंड्रॉन दैट इज वुड. मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है कि जिनका वुड का कलर या स्टेम का कलर जो है रेड. रोडोडेंड्रॉन, इट बिलोंग्स टू फैमिली इरिकेसी. Then Bumantia grandiflora. Bumantia grandiflora, again plant from Apocynaceae and it is endemic to India. Eleusine coracanna. Eleusine coracanna म्हणजे तुम्ही मला वाटते म्हणता नाचणी. Eleusine coracanna is also belongs. नाचणी कुठं पिकते हो? हॅलो हॅलो, नाचणी कुठं? नाही. नाचणी पिकते साधारणपणे कोकणामधल्या उतारावरच्या ज्या रांगा आहेत त्या. आय थिंक यू माइट बी नोन ऍज फार ऍज वेस्टर्न घाट कन्सिडर्ड. ऑन द वेस्टर्न घाट थोड्याशा उताराच्या रांगा आहेत, डोंगर उताराच्या, आणि अशा एरियामध्ये नाचणी पिकते. दॅट इज इल्युसाइन कोरॅकॅना. इट इज ऑल्सो एंडेमिक स्पेसीज. साधारणपणे महाराष्ट्रामधल्या आजरा आणि चंदगड तहसील किंवा थोडासा सावंतवाडी तहसील इथले जे फुट हिल्स आहेत, ऑन द फुट हिल्स वेअर देयर इज अ less comparatively problems of soil erosion, Eleusine coracanna is grown, or it is also known as a fox millet. Then Caryota urens. Caryota urens म्हणजे मला वाटतं तुम्हाला माहिती असेल, फिश टेल पाम शायद आपने देखा है. हेलो, फिश टेल पाम देखा है. दैट इज Caryota urens, belongs to family Ericaceae and it is also again endemic to Konkan area. Then Agale marmelos. Agale marmelos का मतलब है बेल, belongs to family Rutaceae and it is also endemic species. Then Crotalaria juncea. Crotalaria किंवा ताग माहिती आहे तुम्हाला? पिवळ्या रंगाची फुलं येतात आणि खुळखुळा पण म्हणतात. सो ताग. Crotalaria is again a endemic species. Ficus religiosa. Ficus religiosa म्हणजे पिंपळ. It is again supposed to be endemic species and it is available from family Moraceae. Then Sesamum indicum. हाँ बोलो. Hello. Sesamum indicum which belongs to Pedaliaceae. तीळ म्हणता तुम्ही, किंवा Sesamum mullianum. The other species belong to families like Rubiaceae, including 6 genera. Rosaceae, Asteraceae, Primulaceae, and Acanthaceae shows presence of presence of endemic different endemic genera. So this part is related to endemism. But I'm little surprised why our presentation is not working. Just a minute. एक मिनिट, हा आपण बघूया काय झालंय. जस्ट अ मिनट. अगर प्रेजेंटेशन चला तो और अच्छा था हमारे लिए. हाँ अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो. यस सर. ओके, जस्ट अ मिनट. मैं पीपीटी जो हमारी रेडी थी उसको फिर से खोलने की कोशिश करता सो दैट इट इज इजी टू रिमेम्बर. एक मिनट, जस्ट मिनट. अभी पीपीटी दिख रही? हेलो. हाँ. सो दिस इज रिलेटेड टू एंडेमिज्म. अब पीपीटी के बैकग्राउंड पर क्या है?
Hello, what is on the background of slide? Map. Map है, world map है. That is, you are observing various continents. So you are observing the various continents. Now you just go through it. Endemic species are only found in one specific geographical area. Only in one specific geographical area. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने ही बताया होगा आपको. नेम ऑफ द प्लांट इज डिप्टेरी कोकोनेंसिस. शायद नाम सुना है आपने, डिप्टेरी कोकोनेंसिस. Now this Diptera coconensis belongs to family Liliaceae and only plant available in the about 100 square kilometer area of Ratnagiri city itself. शायद आप सभी लोगों को पता होगा, कोकण में ज्याला तुम्ही कातळ म्हणता किंवा दगडी सरफेस आहे आणि अशा दगडी सरफेस वरती थोडक्यात जिथं माती जमा होते अशा जवळपास 100 स्क्वेअर किलोमीटरच्या एरियामध्ये दगडी कातळावरती हा डिप्टेरा कोकोनेंसिस मिळतो. सो इट इज एंडेमिक टू दॅट पर्टिक्युलर एरिया. दुसरं प्लांट सांगतो मी, आपण आता बघितलेलं आहे इम्पॅशन्स बाल्सामिना. तुम्ही सगळ्यांनी इम्पॅशन्स बाल्सामिना बघितलंय प्लांट? हेलो, इम्पैशंस बाल्सामिना आप सभी लोगों ने देखा है? नहीं देखा? हेलो, अच्छा नहीं देखा तो नहीं देखा, बता दो. अच्छा, चिवड़ी का प्लांट देखा है? चिवड़ी, हेलो, हाँ. चिवड़ी देखा है ना? जस्ट मिनट. इम्पैशंस impassions. एक मिनट. आप सभी लोगों ने हाँ ये देखा है इम्पैशंस या बाल्सामिना? यस हेलो, सर. हाँ ये प्लांट तो आप सभी ने देखा है. हम इसको Yes, बोलते हैं sir. चिवड़ी किंवा मराठीत गौरी किंवा इम्पैशंस. अब मैं इम्पैशंस की और एक स्पेसीज दिखाता हूँ, अकाउलिस. और ये स्पेसीज है, जस्ट मिनट, इम्पैशंस अकाउलिस. हाँ, अभी दिख रहे हैं आपको फोटो? हेलो, हाँ. हाँ, तो Yes, मैं sir. थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ. यू जस्ट ऑब्जर्व दिस स्पेसीज. पहले आपने देखी थी इम्पैशंस बाल्सामिना, अभी आप देख रहे हैं इम्पैशंस अकाउलिस. अकाउलिस के लिप जो है फ्लेशी है एंड दिस स्पेसीज इज ऑब्जर्व ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑन द रनिंग वॉटर स्ट्रीम्स. रनिंग वॉटर स्ट्रीम म्हणजे तुम्ही म्हणता धबधबे. धबधबे तुम्हाला माहिती आहेत, वेस्टर्न घाटातले धबधबा जो आहे तो साधारणपणे काळ्या इग्नियस रॉक वरून वाहणारं पाणी आणि अशा इग्नियस रॉक वरती येणारं दिस प्लांट दॅट इज इम्पॅशन्स अकाउलिस. इम्पॅशन्स अकाउलिस मी मुद्दाम तुम्हाला दाखवतोय. सो इट इज ओनली एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट. बॅकग्राऊंड वरती व्हाईट पोर्शन जो बघताय तो वाहून जाणारं पाणी आणि त्या पाण्याच्या एरियामध्ये हा इम्पॅशन्स तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि इथं हा बघा इम्पैशंस अकाउलिस. मैंने और एक प्लांट आपको अभी अभी बताया था एंड नेम इज डिप्टेरी, जस्ट मिनट, कोकोनेंसिस. यस, अभी दिख रहा है डिप्टेरी कोकोनेंसिस. अगर आप डिप्टेरी कोकोनेंसिस के फ्लावर देखोगे, छोटे छोटे फ्लावर्स है और डिप्टेरी कोकोनेंसिस आपको दिखाई देता है ऑन द प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न घाट. स्पेसिफिकली मैंने बताया था आपको एग्जांपल फ्रॉम रत्नागिरी. हम देखते हैं रत्नागिरी प्लेट्यू क्या कुछ आता है क्या? हाँ यस, आप यहाँ देख लो, ये फोटोग्राफ जो है दैट इज फ्रॉम कास प्लेट्यू. और प्लेट्यू के बारे में शायद आपको जानकारी है. प्लेट्यू मीन्स जस्ट इट इज अ टेबल लैंड और इट इज अ फ्लैट एरिया एंड नॉर्मली इट इज ऑन द इग्नियस रॉक. जहाँ इग्नियस रॉक्स के ऊपर मिट्टी जमा होती है वहाँ बहुत अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑब्जर्व होता है एंड दिस वन इज कास प्लेट्यू. सो
I was actually interested in रत्नागिरी प्लेट्यू, नहीं तो मुझे यहाँ कातर लिख कर देखते हैं। हाँ, यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर आप यहाँ देखोगे तो आजू बाजू में बहुत सारे स्टोन्स है, लेकिन इन स्टोन्स के आजू बाजू में जो जमीन है वहां आप देखोगे तो वहां मिट्टी जमी रहती है, और ऐसे मिट्टी में ये प्लांट्स आते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर कोकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड दीज आर द डिफरेंट प्लेट्यूज। यहाँ भी आप देख सकते स्टोन्स है और उसके आजू बाजू में प्लांट्स है। सो सच अ टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। हम अपने पीपीटी की तरफ जाते। Endemism is described on varying geographical scales. Various geographical scales could be endemic to forest patch of few hundred meter, a forest or a forest biome. मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन जो है बहुत कम एरिया से बहुत ज्यादा एरिया तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट्स की तरफ हम अगली बार जाने वाले हैं, लेकिन हमेशा एंडेमिज्म एंड हॉटस्पॉट, दीज आर द रिलेटेड टर्म्स। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर रेड मार्क्ड एरिया, दीज आर सपोज टू बी हॉटस्पॉट। अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में रेड एरिया है, सम ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न यूरोप में दीज रेड मार्क्ड एरियाज है। जस्ट मिनट, होंगे lecture में कुछ लूंगी। So these are the different hotspots. So you can observe now data related to hotspot. Recent data indicates that 76.4% of New Caledonia's native angiosperm and gymnosperm species are strictly endemic. मैं फिर से बताता हूँ, New Caledonia is again island, and in these islands, घेतला नाही? And these, as far as these islands considered, 76% of area is native and it is supposed to be endemic. Then next, occurring nowhere else in the world, मतलब सिर्फ endemic नहीं है, पूरे world में कहीं भी नहीं है, and that just over 14% of genera are likewise endemic, and this figure is as per Jeffrey et al. In 1993. Caledonia's island, that is about 76.4% native species. Now you should be known 5 angiospermic plant families can also be recognized as endemic. There are 5 families of angiosperm which are supposed to be called as an endemic species. First one, Emborrelaceae. इसके पहले कभी मैंने आपको एम्बोरिलेसी के बारे में बताया था? हेलो, याद नहीं है तो? याद नहीं है, किसी के भी याद में नहीं है? जयंत, हर्षा, एम्बोरिलेसी के बारे में कभी बताया था? नाम तो सुना है? हेलो, Emborrelaceae was supposed to be oldest family of angiosperm, but now Emborrelaceae is called as a highly advanced family of angiosperm. Remember, Emborrelaceae के प्लांट आपने देखे नहीं है, लेकिन Emborrelaceae is now highly advanced family of angiosperm. So Emborrelaceae is endemic. Then Onchotheaceae, again it is endemic. आपने ये तो नाम भी नहीं सुना. Then Paracryphiaceae, it is also endemic. Then Philinaceae, it is also endemic, which is Aquifoliaceae. Then Strasburgiaceae, शायद आपने ये पांचों नाम भी सुने नहीं है, because these are endemic. They are restricted to only particular geographical area. Out of these 5 families, you are known at least by name with Emborrelaceae. ये जरूरी है, हमने टेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्शन लिखा था या देखा था उसमें ये डिस्क्रिप्शन शायद नहीं है. जस्ट मिनट. So these are the 5 different families which are supposed to be endemic families of angiosperm. आप सभी सुन रहे हैं ना? हेलो, हाँ, अभी एंजियोस्पर्म स्पेसीज एंड एंडेमिज्म, स्पेसीज लेवल पे एंडेमिज्म कैसा है? सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट कॉलम, दैट इज रीजन, हवाई, न्यूजीलैंड,
Madagascar, New Caledonia, Cape region, that is Cape Comorin or South America, South Africa, then Juan Fernandez, Fiji, Peru, Taiwan. ये सभी जियोग्राफिकल एरिया सुनने के बाद, देखने के बाद शायद आपको पता होगा मेजॉरिटी ऑफ दीज आर आइलैंड्स, इजंट इट? हेलो, हवाई, न्यूजीलैंड, मादागास्कर, न्यू कैलेडोनिया, केप रीजन, ऑल दीज आर आइलैंड्स. और इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया और पैचेस आर आइलैंड्स. अब स्पेसीज देखते. हवाई में 980 स्पेसीज एंड 89% ऑफ एंडेमिक स्पेसीज. न्यूजीलैंड 2000 स्पेसीज, 81% स्पेसीज आर एंडेमिक. Madagascar, California 10,000 species and about 80% species are endemic. वैसे ही ताइवान, which is supposed to be one of the important country, 3,350 species and out of these 25% species are endemic. So you just go through a list of different islands on which large amount of endemism is observed. Now our country is India. Because whenever we are going to study the entire endemism, we should be known regarding the endemism in our country. Now, as far as endemism in our country considered, you should be known with biogeographic zones. As far as biogeographic zones considered, what are the facts? The fact is that world's total plant species are 4,22,000. इसके पहले plus 3.5 lakh हम बोल रहे थे. So 4,22,000 species are totally known species, and out of these 1,93,500 species are, that means about 46% species are endemic. आपके ध्यान में आ रहा है? मतलब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से 45% species are endemic. It is always told that about 25% Indian flora is also endemic. 60% flora of Andaman and Nicobar is endemic. Endemic means restricted to that particular area or not propagated in different new area. Then next one देखो, endemism. India total plants 17,000 and out of this 17,000, 7.2 thousand are endemic. That is about 42% species are endemic. अब ये एंडेमिक के जोन कौन कौन से है देखो. ट्रांस हिमालयन जोन, म्हणजे ट्रांस मतलब बिहाइंड, सो ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन इटसेल्फ, गैंगेटिक प्लेन, देन डेजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, वेस्टर्न घाट जोन, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल जोन, आइलैंड जोन, माइक्रो एंडेमिक सेंटर्स, मेगा सेंटर्स ऑफ एंडेमिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स व्हिच आर शोन हियर. अभी आप थोड़ा सा इसमें से देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको यहाँ दिख रहा है डॉटेड लाइन से. ये पूरा हिमालयन जो है नॉर्थ ईस्ट तक, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक, ये एरिया विच इज सपोज टू बी हॉटस्पॉट. दूसरा हॉटस्पॉट अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट, ए नैरो स्ट्रीच्ड जो पोर्शन है, अबाउट 150 किलोमीटर इन विड्थ and 20 to 150 kilometer in a width and starting from part of Gujarat and ranging up to Kanyakumari. So this west coast पर जो है that is Western Ghat. This is also a hotspot. उसके बाद आप और एक लाइन देखो, इधर बर्मा से लेकर अपने नॉर्थ ईस्ट से सुंदरलैंड तक, सुंदरलैंड तक जो है इट इज अगेन ए हॉटस्पॉट. और बाकी छोटे छोटे हॉटस्पॉट आपको यहाँ दिखेंगे, दैट इज माइक्रो एंडेमिक सेंटर्स. सो दिस इज द पोजीशन इन आवर कंट्री. स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रेटन्ड एंजियोस्पर्म फ्लोरा. सिर्फ एंजियोस्पर्म फ्लोरा देख के नहीं चलेगा, वी शुड बी नोन अबाउट थ्रेटन्ड एंजियोस्पर्मिक फ्लोरा. सो यू जस्ट गो थ्रू इट, यू कैन ऑब्जर्व. सबसे ज्यादा साउथ में है, फॉर एग्जांपल इन कर्नाटका, इन केरला एंड तमिलनाडु. बड़े बड़े रेड कलर्स के दिखाए हैं, रेड कलर्स के, दैट इज एंडेंजर्ड के स्पॉट्स इस एरिया में ज्यादा है. बाकी तो आपको यहाँ नंबर ऑफ स्पेसीज असेस्ड यानी साइज के ऊपर आपको ध्यान में आएगा कि ये 2-3 स्पॉट जो है वो करीबन 500 के, ये स्पॉट जो है 250 का, एंड सो ऑन. एंड these are the different color codes, that is state wise distribution of threatened angiosperm species. आपको आप सुनाई दे रहा है और देख रहे हैं? हेलो,
हेलो, Yes, sir. हाँ। अब टोटल बीएसआई ने जो बताया 2009 की फिगर देखो, मरीन algae, फंजाई, लाइकेन, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इनकी टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन इंडिया अबाउट देखो कितनी है, नंबर ऑफ एंडेमिक कितनी है, और एंडेमिक का ओवरऑल परसेंटेज। मरीन algae में से 1% algae दैट इज मरीन, फंजाई में से 24% फंजाई एंडेमिक, देन लाइकेन में से 23% लाइकेन, लिवरवर्ट से 30%, एंड एंजियोस्पर्म से 36% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एंडेमिक टू आवर कंट्री। अब ये सब होने के बाद इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू नो रिगार्डिंग व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस बिहाइंड एंडेमिज्म। एंडेमिज्म के पीछे कॉजेस क्या है, व्हाई दे आर गोइंग टू बी एंडेमिक और व्हाई दे आर बिकमिंग एंडेमिक। मैं आपको एक सिंपल मराठी में पूछता हूँ थोड़ा सा। सुहाना है, सुहाना खान, हेलो सुहाना। यस सर। हाँ, मैं मराठी बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में बाकी लोगों से पूछ लेना क्या है। शायद आपको पता होगा, अगर आपके क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और उस क्लास में एक आधा लड़का अचानक बात करना बंद कर देता है सभी से, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता हुआ, आप सभी के ध्यान में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बात नहीं कर रहा है। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड इट, इजंट इट। अगर आपका फ्रेंड है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उसका रीजन ढूंढते, मतलब आप सोचने लगते कि लास्ट आखिरी बार ये कब बोला था, जब बोला था तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्यों अचानक इसने अपने से बात करना बंद कर दिया, व्हाई ही इज गोइंग टू बी आइसोलेटिंग हिमसेल्फ। ये सही है क्या नहीं है? यस सर। वैसे ही व्हाई एंडेमिज्म इज गोइंग ऑन, उसके कॉजेस। अब कॉजेस के बारे में देखो, पहला कॉज नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नैरो है, मतलब कोई एक्वेटिक प्लांट है, रिवर स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, तो उसको माइग्रेट होने के लिए चांसेस ही कम है, बिकॉज इट हैज अ नैरो एम्पलीट्यूड, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एंडेमिक। देन पुअर एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी पुअर है। मैंने आपको शायद एक एग्जांपल बताया था कि मेरा एक फ्रेंड कोंकण एरिया में डॉक्टर करके गया, बीएमएस डॉक्टर था, और 15 दिन के बाद वो वापस आया, बोले हेल्थ ठीक नहीं रही थी, वहां का क्लाइमेट ठीक नहीं है। मैंने उसको पूछा, अरे क्लाइमेट ठीक नहीं है तो वहां के लोग रहते क्या, बाहर भागते? नहीं, बोलते रहते हैं। फिर बोला, अरे अगर हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, वहां क्लाइमेट ठीक नहीं है, तो दैट इज पैराडाइज फॉर यू, क्योंकि क्लाइमेट ठीक नहीं है तो लोग सिक हो जाएंगे, लोग सिक हो जाएंगे, पेशेंट बढ़ेंगे तो तेरा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन वो माना नहीं, वो छोड़ के आया। वैसे हियर पुअर अडेप्टेबिलिटी, अगर स्पेसीज ही खुद पुअर अडेप्टेबिलिटी दिखा रही, then if species is not going to adapt himself within the changing climatic conditions, then it goes to endemism. जियोग्राफिकल बैरियर, जैसे मैंने अभी अभी नवेगांव बांध, गोटनगांव तालाब, जहाँ का एग्जांपल दिया था, चारों तरफ से पानी है और बीच में छोटा सा आइलैंड है, तो इट इज अ जियोग्राफिकल बैरियर। इसीलिए आप ये भी ध्यान में रखो, मैंने बताया था अभी अभी आपको कि अंडमान निकोबार फ्लोरा, 70% ऑफ अंडमान एंड निकोबार फ्लोरा इज एंडेमिक। Most of the flora of Sri Lanka is endemic because of geographical barrier. Changing climatic conditions, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं तो फ्लोरा फाउना भी चेंज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स और कॉजेस ऑफ एंडेमिज्म। आप लोग हमेशा सिर्फ पीपीटी देख के मत छोड़ो, कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो। हालांकि मैं सभी हैंडआउट्स के फॉर्म में पीपीटी या उसका डिटेल्स देता हूं, आप ध्यान में रखो कि नोट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने वर्ड में जो नोट भेजी है वो डिफरेंट है। शायद आपने देखा होगा जब पीपीटी बनती है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। Endemism is the ecological state of species being unique to defined geographical location, such as island, nation, country, or other defined zones, or habitat type. Organisms that are indigenous to place are not endemic to it if they are also found elsewhere. ठीक है, हम इसके तरफ बाद में भी देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है। मीनिंग ऑफ एंडेमिक हमने पहले ही देखा है, टाइप्स ऑफ एंडेमिज्म देखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंडेमिक देखे हैं, एरियाज ऑफ एंडेमिक के बारे में हमने देखा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेमिक अभी अभी हमने देखा। अब
मेरे लिए सबसे जरूरी, दैट इज एंडेमिक स्पेसीज ऑफ इंडिया। शायद आपने देखा होगा करीबन 17,000 स्पेसीज में से 27% स्पेसीज हम बोल रहे थे कि एंडेमिक है। एंडेमिक मींस रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ओनली। अब कौन सा स्पेसीज है, उसमें से 2, 4, 10 स्पेसीज कम से कम आपको मालूम होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। द फर्स्ट वन, रोडोडेंड्रॉन। मैंने बताया था रोडो मीन्स रेड इन कलर, डेंड्रॉन मीन्स वुड। Rhododendron belongs to family Ericaceae and it is a endemic species. Then Beaumontia grandiflora, Eleusine coracanna. Eleusine coracanna म्हणजे पाजरी नाचणी सांगितलं होतं मी. Caryota urens, Caryota urens म्हणजे अर्धी सुपारी म्हणतात किंवा फिशटेल पाम. Agale marmelas, Protolaria junxia, Ficus religiosa, Sisamum indicum. मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जो जरूरी चीजें हैं एक कागज पे लिखो, स्क्रीनशॉट निकालो, फिर से हाथ से लिखो, एक पेज पे लिख के जहां बैठते हैं आप पढ़ने को वहां लगा दो, सो दैट यू हैव आइडिया। अगर एंडेमिज्म बोला तो इमीडिएटली आपके दिमाग में रोडोडेंड्रॉन आना ही चाहिए, सिसेमम इंडिकम आना ही चाहिए, प्रोटोलारिया जंक्सिया आना ही चाहिए, सो दैट इट इज, इल्यूसाइन कोराकेना आना चाहिए, सो दैट इट इज इजी टू रिमेम्बर। Other species belong to families like Rubiaceae, ये हमने पढ़ा है। Species endemism and hotspot, किसी चीज का मार्केट में भाव कब बढ़ जाता है, जब वो मिलती नहीं। एक 15 दिन पहले मैं, हमारे यहाँ गुरुवार का मार्केट रहता है, वो जो सब्जी लेके देहात से लोग आते हैं उनका, वहां मैंने देखा आया था डुंबर साथी किंवा तुम्ही म्हणता मशरूम। काय रेट असेल मशरूमचा? हॅलो, डुंबर साथी किंवा मशरूमचा रेट मार्केटमध्ये काय असेल जयंत? 200 रुपये पाव, 250 रुपये पाव, 100 रुपये पाव, 250 रुपये पाव। त्या मानानं तुम्ही गोंदिया भंडारामध्ये बघितलं असेल, आय हॅव ऑब्झर्व इन रविनगर एरिया, इट वॉज अबाउट 800 रुपीज पाव, नॉट किलो, और अबाउट 3,200 रुपीज kg. आय थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोन, थोडीशी अतिशयोक्ती असेल पण तुम्हाला हे सांगतो की आय थिंक ऑल ऑफ यू शुड बी नोन, in market whenever anything has a good quality and less supply, then its demand is going to be increased. म्हणजे डिमांड जास्त आहे, सप्लाय कमी आहे, अशा वेळेला त्याचा मार्केटमध्ये कॉस्ट वाढते किंवा किंमत वाढते। आता जयंतने सांगितलं होतं 200 ते 250 रुपये पाव, मी सांगितलं होतं 800 रुपीज पाव, पण 800 रुपये म्हणले तरी 600 रुपयाला द्यायला तयार होते। म्हणजे मार्केटमध्ये जेव्हा एखादी वस्तू मिळत नाही तेव्हा तिची व्हॅल्यू वाढते। Isolated geographical areas such as island, lake or mountain ranges often has many endemic species. Notable hotspot of endemics are, अब notable hotspot देखो, मादागास्कर, शायद आपने मादागास्कर कंट्री सुना होगा, सी एशिया, द कैरेबियन म्हणजे वेस्ट इंडीजचा भाग, एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर सपोज टू बी एंडेमिक या हॉटस्पॉट। हमेशा छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे चीजें नोटबुक पर लिखने की कोशिश करो। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे जो चीजें जरूरी है, आप हंसोगे मैंने कौन से कागज पे लिखे है। देखो मैंने इस कागज के टुकड़े पे मुझे जो जरूरी था वो लिखा है। हमेशा लिखकर अपने पास रखने की, चिपकाने की कोशिश करो। फिर देखो, अनफॉर्चुनेटली मेनी एक्सपीरियंसिंग हाई रेट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या? हेलो, नहीं सर। नहीं, देखो मैंने किसी को पूछा तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा। नॉर्मली मैं सोच समझ के ये करता हूँ कि कोई टॉपिक अगर आसान है पढ़ने के लिए तो सिर्फ कंसेप्चुअल बात करके उसको आपके ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ। रिमेंबर वेल, व्हेनेवर यू फील दैट इट इज वेरी सिंपल, आई कैन राइट इट, then it becomes difficult। जो चीजें आपको बहुत आसान लगती है, आपको अगर किसी ने बोला कि इंसान की डेफिनेशन बताओ, आपके मुंह में है, आपके दिमाग में है, लेकिन आपके जबान पे नहीं आता। सो थोड़ा सा ध्यान दे दो, कोशिश करो पॉइंट्स लिखने की। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्रिप्टिव। आपने देखा होगा मैंने वर्ड फाइल में जो दिखाया था उससे पावर पॉइंट अलग है। मैं और बताता हूँ,
एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म इज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये चीज अभी अभी वर्ड फाइल में देखी थी। फिजिकल, क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एंडेमिज्म। एंडेमिज्म को कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? इट मे बी फिजिकल फैक्टर, इट मे बी क्लाइमेटिक फैक्टर, और इट मे बी बायोलॉजिकल फैक्टर। The orange-breasted sunbird is exclusively found in the fynbos vegetation zones of southwestern South Africa। अभी आपको ये बर्ड मालूम नहीं है, लेकिन आप किसी भी दूसरे बर्ड के बारे में भी देख सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। क्या आप लोगों ने आउल्स का पॉपुलेशन या आउल्स देखे हैं? हेलो, यस सर। कौन से एरिया में देखे हैं और कौन से टाइम पीरियड में देखे हैं? हेलो, टाइम पीरियड मतलब सवेरे देखे हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में देखे हैं, इवनिंग में देखे हैं, रात को देखे हैं, कौन से टाइमिंग में देखे हैं? रात को देखे सर। रात को देखे हैं, बिकॉज आउल इज सपोज टू बी नॉक्टर्नल। अब कौन से एरिया में देखे हैं, इसका जवाब कोई दे सकता है? जयंत? हाँ सर। हाँ, बोला बोला जयंत, एनी आयडिया? स्पेसिफिक नाही, एरिया स्पेसिफिक म्हणजे मी असं महाराष्ट्र कर्नाटक असं विचारत नाही आहे. तुम्ही साधारणपणे बघितलं तर ते कुठं दिसतात तुम्हाला? अलॉंग द टेलिफोन लाईन्स, along the electric lines, along the roadside, on the open land, or even in the vegetation or inhabited areas. But to be more precise, they are normally observed in a rice belt. साधारणपणे धान मळणी करणारी किंवा तुम्ही त्याला काय चूर्ण म्हणता करणारा जो एरिया आहे त्या एरियामध्ये तुम्हाला आऊल दिसतात. वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट, नहीं तो पड़क्या जागेमध्ये दिसतात. एंड आई थिंक मैंने आपको अभी अभी बताया था कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में, बिकॉज देयर एबिलिटी टू व्यू समथिंग एंड एबिलिटी टू लिसन समथिंग इज अबाउट 10 to 12 times मोर देन ह्यूमन बीइंग। हम लोग अंधेरे में जितना देखते हैं उसके 20 गुना ज्यादा आउल को दिखता है। सो व्हाई दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट? तो जियोग्राफिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, या क्लाइमेटिक बैरियर है। शायद आप लोगों में से जो लोग विलेजेस के हैं वो देखो, जिथं जिथं धानाचं चूर्ण चालतं अशा आजूबाजूच्या एरियामध्ये उंदरांची संख्या जास्त असते. जिथं पडीक एरिया आहे घराच्या आजूबाजूचा तिथून उंदीर फिरतात, आणि म्हणून अशा एरियामध्ये साधारणपणे संध्याकाळच्या वेळेला तुम्हाला आऊल लार्ज स्केल वरती दिसतात. तुम्हाला हायवेला आऊल दिसणार नाही, पण साधारणपणे आजूबाजूला कुठेतरी व्हेजिटेशन आहे, थोडंफार मग तुम्हाला आऊल दिसतो. द एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म इज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये चीजें देखी है। Political factors can play a part if species is protected or actively hunted in one jurisdiction but not another. कोई स्पेसीज है, एक jurisdiction में hunting किया जाता, दूसरे jurisdiction में उसको protect किया जाता. By protecting just 1.4% of world's land surface containing all endemic hotspots, अभी भी हमने हॉटस्पॉट्स के तरफ देखा नहीं है, सिर्फ 1.4% एरिया के हॉटस्पॉट्स को यानी कंसिडर किया है। 44% of the world's vascular plant and 35% of terrestrial vertebrates could be preserved। सिर्फ 1.5% एरिया को आपने अगर प्रिजर्व किया, 1.5% एरिया की अगर केयर की, तो you can achieve this much। But these hotspots also contain 20% of world's population। मतलब इन हॉटस्पॉट्स के एरिया में वर्ल्ड का 20% पॉपुलेशन भी है। Most of them rapidly increasing and are therefore areas in the intense commercial exploitation and habitat destruction। हमेशा ध्यान में रखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिक्लाइन होने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एंड हेंस सक्सेसफुल कंजर्वेशन कैनॉट फोकस ऑन wilderness areas alone। Endemism hotspots contain many species and many humans। So these are some things which are related to endemism। I think it is about 12:33। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते और फिर कंटिन्यू करते दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक, ठीक है? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते। मेरे यहाँ अभी 12:33 हो गए हैं, हम 5 मिनट में दूसरा टॉपिक शुरू कर देते। मुझे ये 3rd यूनिट कल ही कंप्लीट करना है।
मैंने आपको थर्ड यूनिट का बचा हुआ पार्ट बताया था। आई हैव टोल्ड यू दैट एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट एंड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, उसके बाद इन्वेजन एंड इंट्रोडक्शन टू लोकल प्लांट डाइवर्सिटी एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हमने अभी एंडेमिज्म कंप्लीट किया है और मुझे रेस्ट ऑफ पीरियड में कंप्लीट करना है हॉटस्पॉट एंड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बस 5 मिनट का ब्रेक ले लेते। 12:34 हो गए हैं। आई विल बी बैक बाय 12:39। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके रखता हूं सो दैट जो लोग बैठेंगे वो लोग तब तक देख सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा मैं आपके लिए एक मिनट। क्या आप सभी लोगों ने क्लासरूम पर जो ये छोड़ा है डिफरेंट थर्ड पार्टी लिंक, वो देख रहे हैं क्या? हेलो, क्लासरूम पर कुछ थर्ड पार्टी वीडियो लिंक छोड़े हैं, उसको देख लो थोड़ा सा। और अभी आप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज हॉटस्पॉट, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। बाद में हम 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 12:39 को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके।
हेलो हेलो, हाँ आप Yes, sir. आप सभी सुन रहे हैं? वापस आ गए सभी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we should start with our next topic. I have already told you that I want to complete this unit number 3 by tomorrow. And one of the important topic remaining is, that is hotspot and hottest hotspot. I have already told you that comparatively these topics are simple, but these topics are, I think, much lengthy because they consist of lot of information, and normally it becomes difficult to remember this information. So you just keep on to write down at least something, some points regarding this textual information. So our new topic is related to that is biodiversity hotspot and hottest hotspot. पहले ये सोच लेते हैं कि हॉटस्पॉट क्या है, और उसके बाद हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स के बारे में भी देखेंगे. एक लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को नीचे आपको फिगर दिख रही है, डायग्राम दिख रही है, और उसके नीचे लिखा है कंजर्वेशनल इंटरनेशनल है. हेलो. Yes, sir. अब आप यहाँ इस फिगर को थोड़ी अच्छी तरीके से देखो. बीच में जो है, this one is a tree just like our mango tree. It has high length or height. Another is just like coconut. This is middle sized tree, then less than that, and this one. So this one entire is a canopy, and this canopy is expressing biological diversity of height and canopy itself. कुछ आपको हर्ब्स दिख रहे हैं, कुछ shrub दिख रहे हैं, कुछ trees दिख रहे हैं. They are expressing diversity. Now the Conservation International used two factors to determine which areas qualify as a global biodiversity hotspot. हम कौन से एरिया को हॉटस्पॉट बोलते हैं? मैंने इसके पहले आपको एक बताया था, की स्टोन स्पेसीज और की स्पेसीज, किंवा मराठीत म्हणतो आपण लक्ष्य प्रजाती, म्हणजे किंवा आणखी तुम्ही टर्म ऐकली असेल लक्षवेधी. लक्षवेधी याचा अर्थ इतरांचं लक्ष वेधून घेणारी महत्वाची कृती, दॅट इज लक्षवेधी. तसं दीज आर हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट का मतलब है हॉट एरियाज. हॉट मतलब नॉट मोर इन टेम्परेचर, but areas which are quite different from rest of zone, and they are known as a hotspot. Amount of original habitat loss जहाँ ज्यादा है ऐसे. हम अभी हॉटस्पॉट के बारे में अभी भी हमने कुछ भी नहीं देखा, हम सिर्फ यहाँ एरियाज देख रहे, जोन देख रहे. So these are the different areas of world, and these areas shows different types of biological diversity hotspot. मतलब जहाँ biological diversity है अलग अलग टाइप की, लेकिन if you are not paying proper attention to these biological diversity, then it may have threat to vanish. That is the biodiversity hotspot. आप यहाँ देखो, हम हमेशा टर्म यूज करते हैं मादागास्कर. ये मादागास्कर इज आइलैंड इन इंडियन ओशियन नियर टू अफ्रीका. आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट एंड दिस इज आवर इंडिया. इन दोनों के बीच में जो है दैट इज मादागास्कर. उसके बाद सुंदालैंड, जिसके बारे में हमने एंडेमिक प्लांट्स के बारे में भी सुना था. दिस वन इज वेस्टर्न घाट. उसके बाद आप देखो ट्रॉपिकल एंडीज. एंडी पर्वताच्या रांगा म्हणतो आपण त्याला, एंडीज रांगा, साऊथ अमेरिका मधला एंडीज. सो इट इज देन चिलियन विंटर रेनफॉल व्हॅलिडियन फॉरेस्ट. चिली मधलं फॉरेस्ट, अर्थात तुम्हाला ब्राझील, चिली, साऊथ अमेरिका वगैरे कंट्रीज माहिती आहेत, साऊथ अमेरिकन कंट्रीज. सो this one Conservation International status of 2005 2005 मध्ये इतके वेगवेगळे हॉटस्पॉट होते. नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. अब हॉटस्पॉट की तरफ जाने के पहले आप थोड़ा नीचे दिए हुए फिगर्स देखो. ये कौन सा है इकोसिस्टम, कौन सी है ये? हेलो, व्हाट दिस फोटोग्राफ एक्सप्लेनिंग? It is a mixed type of vegetation. It shows presence of an aquatic body. Specifically, it might be a river or it may be a huge lake. And on the background, you can observe hilly area, which shows presence of a typical evergreen forest, isn't it? Next देखो, next photograph जो है उसमें आप देखोगे, it is a typical forest, dense forest,
and I think you can observe here presence of a sunlight, और ये sunlight के लिए whatever plants है ज्यादा से ज्यादा sunlight trap करने के लिए growth होते हैं. It is a typical deep forest. Then next one, third photograph किस चीज का है, कोई बता सकता है? कौन सा geographical area है? हेलो, हाँ बोला बोला बोला, एनिथिंग मोहिनी बोला, काय जे काय माहिती असेल ते सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. निलगिरी हिल एरियामध्ये किंवा वेस्टर्न घाटामध्ये जे काही असे पर्वत रांगा आहेत की दोज विच आर सपोज टू बी ओपन, बट ड्युरिंग द रेनी सीजन दीज आर कवर्ड बाय ग्रासेस और ग्रास, दीज आर सच अ टाइप ऑफ एरियाज. त्याच्यानंतर चौथी फिगर आहे, जस्ट लाइक अ प्लांट ऑफ पपया, कॉलमनर ट्री आणि लिप्स. सो यू कॅन ऑब्झर्व दिस. Each hotspot contain over 1500 endemic vascular plant species. प्रत्येक हॉटस्पॉट मध्ये किती आहेत? 1500 एंडेमिक हॉटस्पॉट स्पेसीज आहेत. These represent over 0.5% of the world's total vascular endemic plants. किती आहेत? जवळपास 0.5%. Now you can observe the biological diversity. पहिला फोटो बघा, कोणी अशा प्रकारचं व्हेजिटेशन बघितलंय? हॅलो, Yes, sir. हा, कोणत्या एरियामध्ये? एक एरिया Amazon rainforest. Yes, it may be from Amazon. मी Amazon म्हणत नाही, but specifically it is from Western Ghat, Kali River area of North Karnataka district. नॉर्थ कर्नाटका किंवा दक्षिण कानडा आणि उत्तर कानडा असे दोन जिल्हे आहेत कर्नाटकातले. त्यातल्या नॉर्थ कानडामध्ये काली नावाची रिव्हर आहे आणि या काली रिव्हरच्या दोन्ही बाजूला such a type of deep forest is observed. This photograph I have taken in 2017. दांडेली फॉरेस्ट जे आहे साधारण बेळगाव पासून 75 किलोमीटरवर, त्या दांडेली पासून 35 किलोमीटरवर ते हा काली घाट किंवा काली एरिया आहे, काली नदीचा एरिया. यू जस्ट ऑब्झर्व what type of vegetation is a deep forest on the both side, and from the central portion river Kali is going to be flowing. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पुन्हा वेस्टर्न घाटामधलाच, वेस्टर्न घाटामधला काही ओपन एरिया, थोडीशी तांबडी माती, आणि बाकीचा हा जो आहे तो दॅट इज अगेन ए हिली एरिया विच इज कवर्ड बाय एंटायर ग्रीन फॉरेस्ट, श्रबी फॉरेस्ट. त्याच्यानंतर कल्टिवेटेड एरिया. मुद्दाम ह्या फोटोग्राफ कडे बघा. Degree of threat was determined by the percentage of remaining habitat within a region, with each hotspot retaining less than 30% of its original natural habitat. म्हणजे डिस्टर्ब झाला तरी त्यानं स्वतःची 30% लँड राखली, स्वतःचा 30% एरिया राखला. Some of the hotspots have less than 10% of the original natural habitat. म्हणजे 10% काही ठिकाणी आणि काही ठिकाणी 30% नॅचरल हॅबिटॅट हॅज बीन ऑब्झर्व्ड. ओव्हरऑल 34 हॉटस्पॉट्स once covered 15.7% of Earth's land surface. ओरिजिनली हॉटस्पॉट किती होते? 34, आणि लँडमास किती होता? वर्ल्डच्या 15%. 86% of hotspot habitat has already been destroyed due to urbanization, due to industrialization, due to human encroachment. 86% of the hotspot areas has now destroyed. Intact remnants of the hotspot now only cover 2.3% of Earth's land surface. म्हणजे एकूण अर्थ लँड सरफेसच्या 2.3% हा इंटॅक्ट राहिलेला एरिया आहे. hold at least 1,50,000 endemic plant species, आणि या 2.3% geographical area वरती almost 1,50,000 endemic species of plants are available. Contain 11,980 endemic terrestrial vertebrate species. म्हणजे जवळपास या एवढ्या एरियामध्ये 11,980 terrestrial vertebrates आहेत. And they are supposed to be endemic. Now biodiversity hotspot Wallacea. आता वॉलेसियाची कन्सेप्ट काय होती बघा. Hotspot original extent square kilometer 338,494. Hotspot vegetation remaining square kilometer 50,774. Endemic plant species 1,500. This is from Wallacea forest. Endemic and threatened mammals 44 species. Endemic threatened amphibians 7 species. Extinct species 3. Human population density 81 just. बघा जिथं तुम्ही मुंबई सारख्या ठिकाणी 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 पर्यंत
पॉप्युलेशन बघता चंद्रपूर गडचिरोली सारख्या ठिकाणी साधारण 100-150 खूप झालं. गडचिरोलीतल्या काही एरियामध्ये 50 स्क्वेअर किलोमीटर पॉप्युलेशन. एरिया प्रोटेक्टेड पर स्क्वेअर किलोमीटर दैट इज 24,000. सो दिस वाज ऑफ द वॉलेसिया एरिया. अब ये वॉलेसिया एरिया क्या है मैं बताता हूँ. सो द पर्सन वाज अल्फ्रेड रसल वॉलेस, English naturalist born in 1823. Researched the ecology and diversity of species in Southeast Asia from Borneo to Sulawesi, Nusa Tenggara and on Iranian Jaya. So these are the different geographical areas of the world. याच्यापैकी तुम्ही कदाचित इराण ऐकलेलं आहे नाव, बोर्निओ नाव ऐकलेलं असेल. बोर्निओ जोसो म्हणतात आयलँड्स. कॉन्टेम्पररी ऑफ डार्विन को फॉलो करने वाला अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस, who independently and simultaneously wrote about evolution and process of natural selection. डार्विन का सक्सेसर है, डार्विन का फॉलोवर है. उसने he has independently write regarding the evolution and process of natural selection. अब वॉलेस, वेबर्स एंड लाइडिकर्स लाइन्स ये क्या बोल रहे हैं देख लेते. सो दीज आर द डिफरेंट एरिया ऑफ आइलैंड्स एंड फ्रॉम दीज आइलैंड्स whatever line that is Weber's line and Leideck's lines as well as Wallace's lines shows different areas which are protected areas. हम इस एरिया के बारे में ज्यादा अभी नहीं कर रहे, लेकिन आपके ध्यान में आएगा जकार्ता यानी दिस इज फ्रॉम इंडोनेशिया. इंडोनेशिया तुम्हाला माहित आहे साउथ एशिया मध्ये आहे. सो इट इज जस्ट नियर टू इंडिया. सो इन दिस एरिया the next formation of Wallacea. Migration routes between Australia and Asia through the Wallacean Iceland during the Pleistocene Ice Age. Dark green significance where land masses become connected. तुम्ही ऐकलं असेल मानारची समुद्रधुनी, पाल्कची समुद्रधुनी किंवा इंडिया आणि श्रीलंका यांना जोडणारी समुद्रधुनी. तसं हा जो एरिया आहे सुंदा सेल्फ एरिया अँड शाउल सेल्फ एरिया याला जोडणारे जे वेगवेगळे आयलँड्स आहेत, these are the Pleistocene migration routes of different animals as well as plants from this island to this island. फारसं डोक्याला त्रास घेऊ नका, एवढं लक्षात ठेवा की there are islands plays important role in endemism as well as hotspots. आता पुन्हा नजर टाका बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया अँड वर्ल्ड. इंडिया आणि वर्ल्ड मधल्या बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्सचा मॅप. आता आपण हळूहळू हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, हॉटस्पॉट ऑफ महाराष्ट्राकडे येऊ. बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर प्लेस व्हेन कम्स अंडर द थ्रेट इट इज कॉल्ड एज अ हॉटस्पॉट और सेंसिटिव स्पॉट. जहां हॉट मतलब टेम्परेचर नहीं है, हॉट का मतलब है सेंसिटिव. Indian subcontinent has a unique geographical positions, distinct physiographic, edaphic and climatic zones and gradients. Physiographic that is related to soil, edaphic again related to soil, climatic zones. This subcontinent abode म्हणजे रहिवासाचं ठिकाण, abodes a very rich and diverse flora and fauna with high percentage of endemism. अब biodiversity hotspots of India. थोडस हॉटस्पॉटचा एरिया बघा, पूर्णपणे नॉर्थ हिमालयन रिजन. त्याच्यानंतर हा जो एरिया आहे, एरिया कुठून बघा, हिमाचल प्रदेशचा काही पार्ट, बराचसा राजस्थानचा पार्ट आणि गुजरातचा पार्ट. सो धिस एरिया इज नोन एज अ डेझर्ट. तर हा डेझर्ट. त्याच्यानंतर वेस्टर्न घाटचा एरिया आणि वेस्ट बेंगॉल एरिया मधला हा सुंदरबनचा एरिया अँड दिस वन अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स. त्याच्यानंतर लक्षद्वीप अँड मिनिकॉय आयलँड्स. So these are the biodiversity hotspots of our country. क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो. हाँ सर. यस सर. अच्छा बोर हो रहा है क्या? नहीं सर. No sir. नहीं, थोड़ा सा मुझे आज कंप्लीट करने दो. रीजन बिहाइंड दिस इज दैट if we have clear cut idea then you can go through it easily and you can narrate your own note. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप हर लेक्चर की सिंगल पेज नोट बना दो. इस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सुना, और हमेशा उसी नोट को एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करने की कोशिश करो. बिकॉज आई एम गोइंग टू टच ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर सिलेबस. मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ. और अगर मुझे किसी बारे में मेरे पास
लिटरेचर नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो रिगार्डिंग दिस। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक टॉपिक एंजियोस्पर्म के पेपर का अपना हुआ नहीं था, कौन सा? हेलो हेलो, सेम 2 में आपका एक टॉपिक हुआ नहीं था, कौन सा? याद में नहीं है जयंत? हाँ सर। एक टॉपिक मैंने बताया था कि इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, जब मिलेगा तब मैं बताऊंगा। लास्ट सेमेस्टर में कुछ याद में है? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, रिकमेंडेशन ऐसा कुछ था समथिंग। नहीं 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 नहीं, रिकमेंडेशंस नहीं। अच्छा ठीक है, आप बाद में बताओ मुझे। So based on uniqueness of the phytogeographical zones and pattern of endemism, 25 micro hotspots also has been identified in India. 25 माइक्रो हॉटस्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हम अभी भी हॉटस्पॉट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स गए नहीं है, पहले हम एग्जांपल देखेंगे। हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ द planet's land surface but contain more than 50% of its terrestrial biodiversity. Less than 10% of other original natural habitat is remaining. In the Mediterranean basin, only 2% is present. One aspect of the hotspot is that almost 40% of all terrestrial plant and at least 25% of vertebrate species are endemic to these areas. हमने ये इसके पहले भी देखा था। हॉटस्पॉट इंक्लूड क्या क्या है देखो, मेडिटेरियन बेसिन, ट्रॉपिकल एंडीज इन साउथ अमेरिका अँड मादागास्कर, आपण म्हणतो त्याला अँडीज पर्वताच्या रांगा त्या ट्रॉपिकल साउथ आफ्रिकेमध्ये असतात. देन इंडियन ओशन आयलँड, इंडियन ओशन मधले आयलँड्स इंक्लुडिंग आयलँड सच एज, जस्ट अ मिनिट, इंक्लूडिंग आयलैंड सच एज अंडमान एंड निकोबार, एंड दूसरा मैंने आपको बताया था Lakshadweep and Minicoy. South Africa's Cape Floristic Province, southwestern Australia, large areas around Indonesia, Malaysia, and Philippines and eastern Himalaya. So these are hotspots including. There are no designated hotspots in the area of former Soviet Union. पुराना USSR जो था उसमें कोई भी ऐसा designated area नहीं है. Though large extent of forest is found, but in terms of biodiversity priority, it is much lower than the tropical rainforest. Area with high level of species richness, trait, and endemism are known as hotspot. Mayer's 1988 for the first time identified 10 tropical forest hotspots with high level of plant endemism and serious level of habitat loss. Mayer's 1960 added 8 more hotspots, including 4 Mediterranean type ecosystems. Mayer's का नाम hotspot आएगा तो हमेशा के लिए ध्यान में रखना. Recently, 34 biodiversity hotspots has been identified. For being a hotspot, अब hotspot किसी को क्यों कब बोलते? For being a hotspot, region must contain at least 1500 species of vascular plant. मतलब उस जियोग्राफिकल एरिया में कम से कम 1500 स्पेसीज वैस्कुलर प्लांट्स के होना है. That is 70% of the world's total flora as endemic, and it has to lose at least 70% of its original habitat. उसके ओरिजिनल हैबिटेट का 70% उसने लॉस करना चाहिए. अब थोड़ा सा हम ये जो अलग हॉटस्पॉट वर्ल्ड के उसके बारे में देखते हैं. On our planet, hotspots areas are divided into North and Central America, South America, Europe and Central Asia, Africa and Asia Pacific. हम एशिया पैसिफिक में आते हैं. अब इसमें से ईच एरिया देखते हैं. नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, कैरेबियन आइलैंड्स म्हणजे वेस्ट इंडीज, then Madrian pine oak woodland and Mesoamerica. Then South America में Atlantic forest, Corrado, Chilean winter rain forest, Tumbes, Tropic Andes. त्याच्यानंतर, Irano-Anatolian, Mediterranean basin, mountains of Central Asia.
अर्थात मी नेहमी म्हणतो की botanist should have good deal of knowledge regarding the geography and identification of the things. Very likely to this, if you have good sort of geographical knowledge, then immediately you can go through these different places also. Cape Floristic region, coastal forest of Eastern Africa, Eastern Afro-Montana region, Guinean forest of West Africa, Horn of Africa, Madagascar and Indian Ocean Iceland, map Atlantic, Pondoland, Albany and Succulent Cario. So these are the different places of Africa. Then Asia Pacific, East Malaysian Island, the Himalaya, Indo-Burma, Japan, mountains of southwest China, New Caledonia, New Zealand, Philippines, Polynesia, Micronesia, Southwest Australia, Sunderland, Wallacea, and Western Ghat and Sri Lanka. So these are the different 34 important hotspots of the world. ये वर्ल्ड के है. अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट was studied in detail and published in Conservation Biology. Potential impact of climatic changes and global warming on 23rd of the world's tropical hotspot of biodiversity places are identified. It includes Southwest Australia, Caribbean, New Zealand, Madagascar, tropical Andes and mountains of China. अब हमारे लिए जो जरूरी है वो, मतलब हम हमेशा प्लेनेट की तरफ स्टेटस देखते, वर्ल्ड के तरफ स्टेटस देखते, कॉन्टिनेंट्स का स्टेटस देखते, फिर अपने कंट्री का देखते, फिर धीरे धीरे हम अपनी तरफ आते. In India, Professor Madhav Gargil worked at the Center of Ecological Sciences at Indian Institute of Sciences, Bangalore, and Biodiversity Unit of Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bangalore, on the ecology of Western Ghat. शायद आप सभी लोगों ने अगर कभी इकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट ये टॉपिक सुना है तो जरूर प्रोफेसर माधव गाडगिल का नाम सुना होगा. हेलो हेलो, हाँ सर. आप लोगों ने इकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट या माधव गाडगिल का रिपोर्ट ऑन द वेस्टर्न घाट के बारे में सुना है? हो सर. माधव गाडगिल समितीचा रिपोर्ट होता. जर तुम्हाला वाटलं तर जस्ट एक सहज म्हणून तुम्ही कीवर्ड सर्च करून बघा, प्रोफेसर माधव गाडगिल किंवा IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISC, ऐसा अगर सर्च करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में देयर इज वन स्कूल विच इज नोन एज स्कूल ऑफ इकोलॉजी. तर या स्कूल ऑफ इकोलॉजी which is a leading institute of our country, not only our country but world. And in this institute, Professor Madhav Gadgil was studying. आता रिटायर झालेत सर. अतिशय साधा माणूस आहे. दरवर्षी दिवाळीच्या दरम्यान 1 महिना गाडगीळ सर गडचिरोलीच्या जे गाव आहे धानोऱ्याजवळचं लेखामेंढामध्ये 1 महिना आदिवासींच्या सोबत सर राहतात. So on the ecology of Western Ghat, they have shown a report, a mountain range in South India. Western घाटाबद्दल म्हणलंय की माउंटन रेंज इन साऊथ इंडिया. मी मगाशी बोललो होतो तुम्हाला एंडेमिझम शिकत असताना गुजरात पासून कन्याकुमारी पर्यंतचा साधारण वेस्टर्न घाट म्हणजे 50 ते 150 किलोमीटर रुंदी आणि जवळपास 1000 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांब असणारा एरिया, दॅट इज वेस्टर्न घाट. एंड इट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड. अब हमारे लिए जो जरूरी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका. वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, arid the highlands of southwestern Sri Lanka are separated by 400 kilometers. They are strikingly similar in their geology, climate and evolutionary history. Western Ghats, commonly known as Sahyadri Hill and formed by Malabar Plains and the chain of mountains running parallel to India's west coast, about 30 to 50 kilometer island. मी याच्या अगोदर कधीतरी मलबार नावाचा उल्लेख केला होता आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं हॉर्टस मलबॅरिकस, याद में है? जॉन रीड आणि हॉर्टस मलबॅरिकसचा उल्लेख केला होता.
मलबारच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला आणखी एक टर्म सांगितलं होतं, मलबारांचं हॉटेल म्हणतात आपल्याकडे, माहिती आहे? मलबार is coastal area of Kerala and people those who are living in Malabar area are known as Malbari, and most of these people perform the business of hoteling. आणि म्हणून आपल्याकडे म्हणतात इराण्याचं हॉटेल, मलबाराचं हॉटेल. बरोबर आहे? ऐकलं की नाही हे टर्म? नाही सर. मलबाराचं हॉटेल तुम्ही साधारणपणे पुणे मुंबई साईडला जा, म्हणतात मलबाराच्या हॉटेलमध्ये जेवण चांगलं मिळतं किंवा इराण्याच्या हॉटेलमध्ये चहा चांगला मिळतो वगैरे वगैरे जे काय असेल. सो इट इज ऑफ वेस्ट कोस्ट. वेस्टर्न घाट रन ऑल अलॉंग द अरेबियन सी फ्रॉम ताप्ती इन गुजरात टू महेंद्रगिरी इन तामिळनाडू. महेंद्रगिरी दॅट इज साऊथ मोस्ट आपला जो टोक आहे तो, गिरी म्हणजे पर्वत, महेंद्रगिरी. जस्ट अ मिनिट. Covers an area of about 1,60,000 square kilometer and stretches for 1,600 kilometer from the country's south tip of Gujarat in the north, and it is interrupted only by 30 kilometer in Palaghat Gap. Palaghat Gap मध्ये फक्त गॅप आहे, otherwise it is almost 1,600 kilometer running just belt of about 30 to 150 kilometer area. Western Ghat mediate the rainfall of peninsular India by intercepting the southwestern monsoon winds. तुम्हाला माहिती आहे का महाराष्ट्रामध्ये कोकणी आणि घाटी असे दोन नावं बऱ्याच वेळा म्हणले जातात, माहिती आहे? महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच वेळा कोकणी आणि घाटी अशा दोन टर्म वापरतात. जसं तुम्ही म्हणता उत्तर प्रदेशचा म्हणजे भैया, बिहारचा म्हणजे भैया किंवा बिहारी, तसं महाराष्ट्रामध्ये कोकणी आणि घाटी. कोकणी म्हणजे घाटाच्या खाली राहणारे ते सगळे कोकणी आणि घाटाच्या वरती राहणारे ते घाटी. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या माहिती करता सांगतो, महाराष्ट्राला जवळपास 7 ते 8 घाट आहेत. फॉर एक्झाम्पल बोरघाट, आंबोली घाट, आंबा घाट, फोंडा घाट, कुंभारली घाट, ही नावं तरी तुम्ही ऐकलेली असतील. हॅलो. हा सर. Yes, sir. हे एरिया रेस्ट ऑफ महाराष्ट्राला कोकणासोबत जोडणाऱ्या पर्वत रांगा आहेत म्हणेन, किंवा फुट हिल्स ऑफ हिमालयन फुट हिल्स ऑफ सह्याद्री. सो मेनी रिव्हर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटन विच आर सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, इरिगेशन अँड पॉवर. मी मगाशी कुठल्या नदीचा उल्लेख केला होता? हॅलो. काली नदी. काली नदी from North Kannada district of Karnataka. Wide variation of rainfall pattern and complex geography results in great variety of vegetation types in Western Ghat. Vegetation type का various आहेत? तर वाईड व्हेरिएशन रेनफॉल मध्ये व्हेरिएशन जास्त आहे. पॅटर्न आणि कॉम्प्लेक्स जिओग्राफिकल रिझल्ट्स म्हणजे जिओग्राफिकल एरिया पण डिफरंट आहे. Scrub forest in low-lying rain shadow areas and plains, deciduous and tropical rainforest are major areas. Rolling grasslands are also present. थोडासा डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे, अर्थात डिस्क्रिप्टिव्ह असला तरी इंटरेस्टिंग आहे. मी थोडासा महत्वाचा तेवढा वाचतो. श्रीलंका is continental island separated from Southeast India by 20 meter deep Palk Strait. तुम्ही पाल्कची समुद्रधुनी म्हणता. The island is 67,654 square kilometer in size, repeatedly connected with monsoon wind, resulting in much of the island experiencing relatively low rainfall except for southwest zone quarter, whereas perception ranges up to 5,000 nm per year. Actually nm नहीं, वहां cm चाहिए था. Dry evergreen forest occupy the dry zone. Dipterocarpus dominated rainforest dominate the lowland of wet zone. 220 square kilometer of a tropical mountain cloud forest is presented in central hill rising up to 2,524 meters. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला माहिती असेल कळसुबाई सारखं शिखर आहे, भीमाशंकर सारखी प्रोटेक्टेड एरियाज आहेत आणि त्या एरिया मधले
why these are protected, which animals are present or which plants are protected, you are better known. पुढे बघू आपण. There are about 11 coral reef hotspots. आता कोरल रीफचे हॉटस्पॉट कुठले? मगाशी जयंती सांगितला होता ग्रेट बॅरियर रीफ, फिलिपाईन्स, सुंदरलँड नव्हे सुंदालँड, वॉलेसिया, गल्फ ऑफ गिनिया, ईस्टर्न साऊथ आफ्रिका, नॉर्थ इंडियन ओशियन, सदर्न मस्करेन आयलँड, केप वर्डी आयलँड, सदर्न जापान, तैवान, साऊथ सदर्न चायना, वेस्टर्न कॅरेबियन, द रेड सी अँड गल्फ ऑफ अदन, अदनचं गल्फ, हे सगळे काय आहेत? डिफरंट हॉटस्पॉट ऑफ कोरल रीफ्स. अब हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, मतलब हॉट ही नहीं तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स है, एंड देर आर more hottest hotspots of India, and these are supposed to be 26 hottest hotspots. भारतामधले 26 असे ठिकाण जे आहेत, they are supposed to be hotspot. These are like अंदमान अँड निकोबार आयलँड. मी मगाशी सांगितलं होतं अंदमान निकोबारचा 70% फ्लोरा काय आहे? एंडेमिक आहे. अरवली हिल, राजस्थान मधला अरवली पर्वताच्या रांगा, फॉर एक्झाम्पल राजस्थान मधला कुंभलगडचा किल्ला अरवलीच्या फुटहिल्स मध्ये आहे. भरतपूर लेक अँड वेटलँड ऑफ राजस्थान, भरतपूरचा तलाव आणि वेटलँड्स राजस्थान मधले. चिल्का लेक ऑफ ओरिसा, चिल्का लेक बद्दल आपण बोललेलो आहे. दल लेक ऑफ जम्मू काश्मीर, डून व्हॅली ऑफ उत्तराखंड, डून स्कूल म्हणता तुम्ही, डून व्हॅली, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, हिमालया इन्क्लुडिंग इंडिया अँड नेपाळ, म्हणजे नेपाळकडचा भाग आणि इंडियाकडचा भाग. कोडाई लेक फ्रॉम तामिळनाडू, तुम्ही म्हणता कोडाई कॅनाल. लिटिल रण ऑफ कच्छ, कच्छचं रण गुजरात मधलं. देन लोकटाल लेक ऑफ मणिपूर, मानस सरोवर फ्रॉम आसाम, निलगिरी हिल एरिया ऑफ तामिळनाडू, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन एरिया ऑफ इंडिया, नारायण सरोवर ऑफ गुजरात, उटी लेक ऑफ तामिळनाडू, पोयमकट्टी व्हॅली ऑफ केरला, पलानी हिल्स ऑफ तामिळनाडू, पुलिकत सॉल्ट वॉटर लेक ऑफ तामिळनाडू, रेणुका लेक अँड वेस्टलँड ऑफ जरायन, साइलेंट व्हॅली ऑफ द केरळा, सारिस्का अभयारण्य ऑफ राजस्थान, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बेंगॉल, शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिवालिकच्या टेकड्या आपण म्हणतो, थर डेझर्ट ऑफ राजस्थान अँड वेस्टर्न घाट. सो दीज आर द डिफरंट 26 प्लेसेस or 26 different hotspots of our country. Just a minute. आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो. Yes, sir. आप सभी लोगों ने जो दोनों भी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन देख लिए. आई थिंक देयर इज नो मोर दो मच थिंग नीडेड फॉर एक्सप्लेनेशन. ज्यादा बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग. हालांकि मैंने मतलब फास्ट नोट मैंने आपको दी है, जो भी प्रेजेंटेशन हो या और भी जो शेयर कर रहा हूँ उसमें से आपको अपना खुद का निकालना है. जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा 1-2 मिनट के लिए बात करनी थी, लेकिन मैंने शायद दिखा था. मुझे थोड़ा सा एक ये बता दो कि अगर मैंने, क्या आप सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आपको सुन भी रहा है और दिख भी रहा है? हाँ sir. क्या दिख रहा है? सर हेलो? वीडियो है लेकिन वीडियो का आवाज नहीं आ रहा. Video. अच्छा, ओके, आवाज नहीं आ रहा है तो आपको वो खुद, हेलो, आपको आप लोगों को वो वीडियो खुद अपने इस पर डाउनलोड करके आप YouTube पे देखना है. मैंने सिर्फ लिंक दी है. अब यहाँ देखो और एक है, दैट इज मैंने दूसरी लिंक दिया है, नेम्स ऑफ प्लांट इन इंडिया. यहाँ बहुत सारे प्लांट्स की इंडिया के या स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के एंडेमिक प्लांट्स की नेम और लिस्ट दी है. यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट आल्सो. उसके बाद मैंने और भी कुछ लिंक दी है, दैट इज एंडेमिक एंड थ्रेटन्ड टेक्सा. एंडेमिक एंड थ्रेटन्ड टेक्सा की एनविस की जो ये उसकी भी लिंक दी है. वन मोर चेकलिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट्स ऑफ महाराष्ट्र. आप जस्ट 1-2 मिनट के लिए सिर्फ एंडेमिक एंड चेकलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ देखो. सो you can go through these different plants belongs to different families and these are the endemic plants of Maharashtra. महाराष्ट्र के endemic plants है.
उसके बाद एक जरूरी मुझे दिखाना था, वो शेषगिरी या सह्याद्री का। आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Seshagiri Sahyadrika is a plant which belongs to family Asclepiaceae. Name has been given in honor of Seshagiri, and Sahyadrika means belongs to Sahyadri. And this plant has been identified by Ansari and Hemadri. अब बोटेनिकल नेम दिया है शेषगिरिया सह्याद्रिका, अंसारी एंड हेमाद्री, बिलोंग्स टू फैमिली अस्कल्पिडियेसी, थ्रेटन्ड कैटेगरी में है, इट इज वल्नरेबल, इट वाज रिपोर्टेड बाय मिश्रा एंड सिंह इन 2001 एंड लो रिस्क हैज बीन रिपोर्टेड बाय गायकवाड़ एंड यादव इन 2004। अब इसके की कैरेक्टर्स और डिस्क्रिप्शन आपको मैंने इसका डिटेल्स दिया है, ये गोदरेज फाउंडेशन की वेबसाइट से मैंने लिया है। इसके कैरेक्टर आप देख सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ देखो, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जुलाई टू दिसंबर, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंडेमिक टू महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, लोकेलिटी देखो अहमदनगर दैट इज भंडारदरा, पुणे जुन्नर एंड सिंहगढ़, सातारा पंचगणी एंड यवतेश्वर घाट, सिंधुदुर्ग अंबोली डिस्ट्रिक्ट। इकोलॉजी ओकेजनली सीन अमंग द बुशेस। अब ठीक है, आप यहाँ प्लांट देखो, it is known as Seshagiriya Sahyadrika because it is observed in Sahyadri ranges and it belongs to family Asclepiaceae. So this one is regarding Seshagiriya Sahyadrika, and now here you can observe the location of these different areas where this Seshagiriya Sahyadrika is observed. इथं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल, कोकण किनारपट्टीला लगतचा जो हा पूर्ण सह्याद्रीचा घाट आहे किंवा वेस्टर्न घाट आहे, त्या वेस्टर्न घाटामधल्या वेगवेगळ्या प्लेसेस मध्ये. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन विच जियोग्राफिकल रीजन किस टाइप के, फिजिकल मैप किस टाइप का है, रेनफॉल किस टाइप का है, फॉरेस्ट मैप किस टाइप का है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है. सो यू कैन गो थ्रू दिस आल्सो. ऐसे कुछ मैंने आप लोगों के लिए आज का प्रेजेंटेशन शेयर किया है. इसके साथ साथ मैंने आपको आज की जो वर्ड कॉपी मैंने पहले बताई थी वो भी शेयर की है, और अभी आखिरी में सेकंड लेक्चर में हमने जो लिया था दैट इज हॉटस्पॉट एंड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, इसको हम दोपहर के बाद में मैं इसको शेयर करूंगा. अब सिर्फ आपके जो टॉपिक बचते हैं इस यूनिट के, tomorrow we are going to complete that topic also, that is invasive plants, local plant diversity and its socio-economic importance. कल 10:30 बजे हम वो प्लांट भी लेंगे, ठीक है. और we are going to finish our unit number 3 also tomorrow. Just a minute. सर जो आपने टॉपिक बताया था वो लास्ट टाइम रह गया था, कौन सा? और लास्ट सेमेस्टर में बोला था सर, हेटेरोबैथमी. हाँ, हेटेरोबैथमी, राइट. हेटेरोबैथमी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. आज के डेट में भी मुझे हेटेरोबैथमी के बारे में कुछ भी मटेरियल मिला नहीं है. हेटेरोबैथमी मींस इट इज जस्ट रिलेटेड टू इंटर रिलेशनशिप. हेटेरोबैथमी के बारे में जस्ट 2-3 पेज लिटरेचर इज अवेलेबल, ठीक है. मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा मटेरियल जो है उस मटेरियल को थोड़ा सा कंबाइन करके आपके लिए नोट बना के दी जाती है. जरूरी नहीं है कि आप सभी वही नोट यूज करें या पूरी वो नोट यूज करें. यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट इन योर ओन वर्ड्स एंड नॉट मोर देन सिंगल पेज फॉर सिंगल टॉपिक. रिमेंबर, endemism and hotspot and hottest hotspot, these are all these 2 or 3 topics which are very important. हमेशा इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट पूछी जाती है, और आपको ऐसा होता है कि क्वेश्चन आया तो मैं कितना लिखूं और कितना न लिखूं. आप बिना देखे उसके लिए 10-12 पेजेस लिखते और वो क्वेश्चन होता है 8 मार्क का, और बाद में आप बोलते हैं कि सर मैंने 10 पेजेस लिखे लेकिन मेरे को तो 4 ही मार्क्स मिले. सो यू जस्ट कंसाइज योरसेल्फ, यू कंसाइज योर कंसेप्ट्स, ठीक है. और हालांकि आज थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ी जल्दी भी हो गई. एक्चुअली मैं कल बाहर था तो मैं ये भी भूल गया कि आपका लेक्चर 10:30 बजे का है या 11:30 का है. ठीक है, कोई बात नहीं है. आज हमें 2 टॉपिक कंप्लीट करना था, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए. अगर थोड़ा सा हेवी हुआ या बहुत फास्ट हुआ
तो बाद में मुझे बता दीजिए, हम रिपीट करेंगे, हमारे पास एम्पल टाइम इज अवेलेबल, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं एनीबडी? हेलो, नो सर। जस्ट मिनट, आज बहुत सारे प्रेजेंट है, आज स्पेशली सब लोगों ने प्रेजेंट ही डाली है, क्या बात है जयंत? आज करीबन 20 के 20 लोगों ने प्रेजेंट ही डाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैंने नहीं डाली अभी तक। हाँ वही 20 लोगों ने डाली है, मतलब एक आध दूसरे ने डबल डाली होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल देख लेते हैं, हाँ कल का लेक्चर होगा। और थोड़ी सा दूसरी बात ध्यान में रखो, अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं नहीं बताता तब तक मेरा लेक्चर होने वाला है, ये समझ लो। और आपको अगर सही में किसी दिन तकलीफ है कि लेक्चर लेना नहीं चाहिए, आप कभी भी मुझे बता सकते सर आज लेक्चर मत लो, कोई टेंशन नहीं है। आवर सिलेबस इज विद इन आवर कंप्लीट रेंज, ठीक है। येस सर. ओके मम्मीनाच बनवलं. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।